کہ ہم آپ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں کون سا؟ پاکستان اور عالمی معاملات. ہمارے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ پاکستان اور عالمی معاملات, اور یہ چیپٹر ہے چیپٹر 2. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں نا وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد. اس ٹاپک کو ہم نے نا 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک پارٹ میں ہم یہ فرسٹ 2 پوائنٹ ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ پارٹ میں ہم نیکسٹ 2 پوائنٹ ڈسکس کریں گے آپ کے آسانی کے لیے. تو چلیں ہم اسٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے سب سے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا بتانا چاہیے؟ خارجہ پالیسی کہتے کسے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سنیں, خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کے قیام میں جو مقاصد, نمبر 1 مقاصد, نمبر 2 ضابطے اور نمبر 3 کیا ہے؟ اصول پیش نظر رکھ کر لاہم عمل مرتب کرتی ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہتے ہیں. کہ کوئی بھی ریاست کے کیا یہ اس کی کیا تھی پراپر ایک ڈیفینیشن تھی. اب میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھاتی ہوں کہ کیا ہوتی ہے خارجہ پالیسی. کہ ایک ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے, خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تعلقات قائم کرتا ہے. اب اس نے یہ چیز مائنڈ میں رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم یہ تعلقات کس طرح کے قائم کر رہے ہیں اور ہمیں کس ملک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کرنے ہیں. اب آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ اس پوری دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک اکیلا سروائیو کر سکے, کہ اس کے ساتھ اور دوسرا کوئی ملک نہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو اور وہ اکیلا ملک کیا کرے؟ سروائیو کرے پوری دنیا میں. ایسا پاسبل نہیں ہے. اب ہم اگزامپل لیتے ہیں آپ کے گھر سے. دیکھیں, اب آپ کا گھر اگر اکیلا, آپ ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ اگر آپ کا گھر اکیلے کسی جنگل میں بالکل اکیلا گھر ہو, کوئی آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی شہر, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں جیسے آپ اب گزاریں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. کہ کسی بھی ملک کو, کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے, ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ اپنے آس پاس لوگ چاہیے, ایک سوسائٹی چاہیے, ایک انوائرمنٹ چاہیے, ایک شہر چاہیے, ایک ملک چاہیے. اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پورا ایک کلچر بنتا ہے, ایک سوسائٹی بنتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں, ہم نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے؟ اس کے مقاصد دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ خارجہ پالیسی کے مقاصد. تو خارجہ پالیسی کے مقاصد میں کیا ہے کہ دنیا میں وہی بات جو ہم نے آگے کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہے تنہا رہ ہی نہیں سکتا. ہر ملک سے معاشی, تجارتی یا دفاعی تعلق کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے. یہ تعلقات ایک ملک کی سیاسی, تجارتی, دفاعی, جغرافیائی, معاشی اور ثقافتی حالات اور ضروریات مد نظر رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں. ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنی سالمیت, بقا اور قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر تعلقات استعمال کرتا ہے. اب دیکھیں, اس میں وہی بات دوبارہ سے ہم نے بولی ہے کہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں تو ہم پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, کہ اس کے ساتھ دوستی کرنے میں ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہے. کہ کوئی بھی ملک اگر کسی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے یا سب سے پہلے جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس ملک سے تعلق رکھ کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے. اور ہمیشہ کے لیے کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی یا دشمنی یہ بھی پاسبل نہیں ہے. کہ جب جو ملک دیکھتا ہے کہ مجھے میرا اس کے ساتھ تعلق بہتر ہونا چاہیے, اس سے مجھے یہ فائدہ ہے, اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اس سے مجھے یہ فائدہ ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیتے ہیں اس ملک کے ساتھ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم لوگ سب سے پہلے اب ہم نے اس کے کیا پڑھنے؟ مقاصد پڑھنے. کس کے؟ خارجہ پالیسی کے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کیا؟ علاقائی خود مختاری اور قومی سلامتی کا تحفظ. کیا؟ علاقائی خود مختاری اور قومی سلامتی کا تحفظ. اس پوائنٹ میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے, کیونکہ ہم کس کی بات کریں؟ پاکستان کی بات کریں. پاکستان جو ہے اس نے خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا مقصد اس کا کیا ہے؟ اپنے ملک کی تحفظ,
अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, अपने मुल्क को महफूज रखना, अपने मुल्क को बचा के रखना। और बहुत से ममालिक के साथ इसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, सिर्फ इस वजह से खारजा पॉलिसी उसने कि पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात बना के रखना, जिससे क्या हो कि उसकी तहफ़्फ़ुज़ को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत को अगर हमेशा किसी से बहुत ज़्यादा खतरा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो कौन सा मुल्क है? आपको भी पता है, भारत, जो कि हमारा क्या है, पड़ोसी मुल्क है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत पाकिस्तान के मशरक़ में वाक़ है। तो अब है तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क और हमें उसके साथ तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। अगर हमारे और पाकिस्तान के और भारत के तल्लुकात अच्छे होंगे तो किसको फ़ायदा होगा? दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान अब कोशिश तो करता है पाकिस्तान के हमारे तल्लुकात अच्छे हों, लेकिन तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अगर ये तल्लुकात अच्छे हों तो उससे सिर्फ पाकिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि भारत को भी फ़ायदा होगा। तो उसके बाद क्या, अब पाकिस्तान की सालमियत को सिर्फ और सिर्फ किससे खतरा रहा है? भारत से खतरा रहा है। और भारत ने कभी भी किसी भी तरह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले इनने क्या किया था, और इसकी एक वजह ये भी है, वो कौन सी वजह है कि जो रियासतें थी, जब बरे-सगीर क्या हुआ, बरे-सगीर तकसीम हुआ, तो जो कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका इल्हाक किसके साथ होना था? पाकिस्तान के साथ होना था। लेकिन भारत ने क्या किया था? उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। उन रियासतों में कौन कौन सी रियासत थी? जूनागढ़ थी, उसके बाद सबसे बड़ी रियासत तो कश्मीर थी, आप सबको पता है। उसके बाद मंडावा थी, हैदराबाद, और ये तमाम जो रियासतें हैं, इस पर क्या किया था? भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब इस वजह से क्या हुआ था कि तब से, जब से ये दोनों मुल्क बने हैं, तब से अब तक इनके ये मसले सॉल्व नहीं हो सके। और उनमें सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसला कश्मीर। अब पाकिस्तान को क्योंकि अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो खुद करना है, और वो इनका खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद है ही अपना तहफ़्फ़ुज़ है, तो इसलिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया? चीन से और अमेरिका से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद हथियार मंगवाए, और जहाँ तक वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किसके लिए? अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आपको पता है फिर जब एटम बम वाली बात हुई थी कि कब धमाका हुआ था? जब भारत ने 1974 और 1998, कब 1974 में क्या किया था? 1974 और 1988 में जोहरी धमाके किए थे। और जो पाकिस्तान ने भी, अब क्या हुआ था? पाकिस्तान इधर क्या एटमी धमाके किए थे? कब? 1974 और 1998 में। किसने? भारत ने धमाके किए थे पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर फिर क्या किया था? जवाब दिया था। और पाकिस्तान ने भी फिर एटमी धमाका करके इस बात को वाज़िया तौर पर उनको बता दिया था कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, कि पाकिस्तान अपना तहफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे किसको? इलाकाई खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़। ये किसका पॉइंट है? खारजा पॉलिसी के मकासद हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। अब नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान ने, ये भी खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मकसद है अपने नजरिए को महफूज रखना। आपको पता है कि पाकिस्तान ने नजरिया इस्लाम की बुनियाद पे ही पाकिस्तान एक मुल्क वजूद में आया था। अब और नजरिया क्या था? नजरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज ही क्या है कि ये मुल्क बना ही अपने मजहब की वजह से था, अपने मजहब की बेस पे बना था, अपने मजहब की बुनियाद पे बना था कि हम ये मुल्क किस लिए हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम क्या करें? अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात और अल्लाह ताला की बताई हुई बातों के मुताबिक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें अपनी मर्जी पर। तो सबसे बड़ी क्या थी बुनियाद की इसकी, किस
उसमें थी खारजा पॉलिसी का मकसद भी क्या है, ये एक बड़ा मकसद है, कौन सा, नजरिया पाकिस्तान का, नजरिए का तहफ़्फ़ुज़। और उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान के बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत ही अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, और अगर किसी भी मुस्लिम ममालिक में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या कोई भी मसले हों तो उसमें पाकिस्तान फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को हमेशा क्या देखना चाहता है, इकट्ठे देखना चाहता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से इसमें मसले थे, जैसे ये मसला कश्मीर हो गया, मसला फ़लस्तीन हो गया, बोस्नीया हो गया, उसके बाद कौन सा अफगानिस्तान और इराक का मसला। अब इन सारे मसलों को हल करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान ने अगरचे इस्लामी नजरिए को अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। क्यों? ताहम इस नजरिए की बुनियाद पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क से तसादम की राह तैयार नहीं की। चीन का इश्तराकी निज़ाम रूस पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानबदारी रवैये का इजहार किया है। नजरिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद में से एक है। क्या? नजरिया पाकिस्तान इस्लामी, गौर से सुने डियर स्टूडेंट, नजरिया पाकिस्तान क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद में से एक है। लिहाजा पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से इस नजरिए के तहत इस तरह तल्लुकात इस्तवार किए हैं कि इस नजरिए पर कोई आंच ना आ सके। क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान को बचा के रखनी है वो क्या है, वो है अपना नजरिया, कि पाकिस्तान ने जिसके साथ भी जैसे भी तल्लुकात इस्तवार किए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, और वो किस चीज को का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, अपने नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, जिसमें हमने अपने फर्स्ट 2 पॉइंट को डिस्कस किया। हम क्या पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद पढ़ रहे हैं। पहले सबसे हमने क्या डिस्कस किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है और कैसे है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, उसके मकासद डिस्कस किए। उसमें पहले सबसे हमने किस चीज को डिस्कस किया, इलाकाई खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़। और नेक्स्ट हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। तो इलाकाई खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में क्या था कि पाकिस्तान सबसे पहले कि क्या है, खारजा पॉलिसी के मकासद में एक बड़ा मकसद ये भी है कि अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, और उसमें पाकिस्तान किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और वो हर तरह से अपने मुल्क को हर मुसीबत, हर जो दुश्मनी होती है, मुल्की दुश्मनी, उससे बचाने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान की सालमियत को आपको पता है कि हमेशा से किसने कुचला है, भारत ने कुचला है, और पाकिस्तान उसका भी भरपूर जवाब देता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि किसी भी तरह का पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था, नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क, अपने आप को महफूज करता है दूसरे ममालिक से, इसी तरह अपने नजरिए को भी महफूज, दूसरे ममालिक की दुश्मनी से, इसी तरह अपने नजरिए को भी महफूज करता है। कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी, कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया था, किस वजह से हासिल किया गया था। तो पाकिस्तान किसी भी तरह से जब भी किसी दूसरे ममालिक से तल्लुकात कायम करता है, जिस तरह के भी तल्लुकात हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, जो भी हो, उसमें अपने नज़रिए पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। और आपका ये जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट भी आ सकता है एक सिंपल पॉइंट पे भी, जस्ट इन चारों में से किसी एक पे भी, और इस पूरा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।